Okay, so was Neues lernen wir heute? Heute lernen wir ein ganz wichtiges Thema. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है und heute in Lektion 10 was wie heißt das auf Deutsch? इसको क्या कहा जाता है जर्मन में? Lektion 10. Lektion 10 bedeutet Lesson 10 in German. Der Satzbau. Heute lernen wir der Satzbau. Was bedeutet Satz? Der Satz. Satz bedeutet Sentence. Satz कहा सेंटेंस। जाता है sentence को. Und Bau. Bau bedeutet structure. Bau कहा जाता है structure को. Der Satzbau means the sentence structure in German. Und heute lernen wir ein ganz wichtiges Thema. ये बहुत ही ज़्यादा important topic है. Why sentence structure is important? Sentence structure इतना important क्यों है? Sentence structure means how the words are arranged to form a correct sentence, and it shows the order of subject, verb and object. ये subject का, verb का और object का order शो करता है. Habe ich vielmal gesagt, मैंने बहुत दफा बताया कि im Deutschen, German में, ein Satzbau besteht aus drei Elementen. A sentence structure consists of three elements. Auf dieser Seite, Slide के ऊपर, haben wir auch einen ganz einfachen Satz. एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है. In diesem Satz, Subjekt kommt immer auf Position 1. जो सब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ आएगा? हम Anfang यानी फर्स्ट पोजीशन पर. Verb steht immer auf Position 2. जो वर्ब है उसकी पोजीशन क्या होगी? हमेशा सेकंड पोजीशन होगी. अब was is conjugated. ये conjugated क्यों लिखा हुआ है वर्ब के साथ? कौन बताना चाहेगा? सर अकॉर्डिंग टू द उमेरा? सब्जेक्ट को। Uh, Nehal, if you would like to answer, please raise your hand, okay? सॉरी सॉरी। Okay, kein Problem, Nehal. Hmm. ठीक है सर, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं। लाइक अगर हम लोग ऐश बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग तरीके से कॉन्जुगेट करना पड़ता है वर्ब Sehr को। gut, Nehal, इंडेफिनिट sehr फॉर्म gut. में। Changing of the verb. Verb को change करना. We change the verb or we change the ending of the verb when we use the verb in a sentence. जब भी verb को किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस verb को अपनी असली हालत में या ओरिजिनल स्टेट में इस्तेमाल नहीं किया जाता. We change the ending of the verb. हम उस verb की ending को change करते हैं according to the subject. Subjects के हिसाब से. And this process of changing the verb is called conjugation. उस process को क्या कहा जाता है? Conjugation. Und das Verb heißt konjugiertes Verb. और उस verb को कहा जाता है conjugated verb. Verstehen Sie? Und am Ende, at the end, steht immer ein Objekt auf Position 3. और थर्ड पोजीशन पर हमेशा एक जुमले में एक ऑब्जेक्ट होता है. सो अ सेंटेंस स्ट्रक्चर शोज द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट यानी कौन उस काम को कर रहा है, वर्ब क्या काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स किसके ऊपर काम हो रहा है. इन तीन चीजों को डिफाइन करता है. इन जर्मन Satzbau ist ganz wichtig. Sentence structure is very important. Und auch wichtig, और ये भी जरूरी है zu wissen जानना. The verb always stays on the second position in the main sentence. Sentence में मौजूद verb की position हमेशा second होती है. Verb steht immer auf Position 2. Immer. हमेशा. Subject
time and object can move. सब्जेक्ट हो या टाइम हो या ऑब्जेक्ट हो, ये मूव कर सकते हैं आगे पीछे, बट लेकिन aber das Verb steht immer auf Position 2. वर्ब की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी. वर्ब पोजीशन never changes. Zum Beispiel, auf dieser Seite इस स्लाइड के ऊपर haben wir einen ganz einfachen Satz. एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है. Und der Satz heißt, सेंटेंस कुछ ऐसा है कि ich esse heute Pizza. Ich esse heute Pizza. मैं आज पिज्जा खाऊंगा या मैं आज पिज्जा खा रहा हूँ. In diesem Satz, इस सेंटेंस में was ist Subjekt यानी सब्जेक्ट क्या है. Hmm. Ich, ich ist ein Subjekt. Ich क्या है? सब्जेक्ट. Dann esse. Was ist esse? Esse क्या है? Verb. Esse ist ein Verb. Sehr gut. Und kommt aus essen. Esse कहाँ से आया? Essen से. Yes, sir. Das ist ein Verb. ये एक वर्ब है. Und was ist Objekt? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? Pizza. Pizza. Sehr gut. Pizza ist ein Objekt. Ein Satzbau besteht aus drei Elementen. A sentence structure consists of three elements. एक जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बुनियादी सांचा है किसी भी सेंटेंस का जर्मन में, वो सिर्फ तीन चीजों पर बेस करता है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Heute, in diesem Satz, इस सेंटेंस में heute bedeutet today. heute का क्या मतलब है? today. today. Und das zeigt Zeit. ये Zeit यानी टाइम को शो करता है. सेंटेंस में मौजूद कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं, जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो टाइम को शो करते हैं. प्लेसेस, प्लेसेस भी हो सकती हैं. ओडा प्रीपोजिशनन यानी प्रपोजिशंस भी हो सकती हैं. लेकिन ये चीजें सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में सिर्फ तीन चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Klar? Nashid, hast du noch Frage, कोई क्वेश्चन? जी सर। सर ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है? बिल्कुल, मैं अभी बताने वाला हूँ नशीद. फिलहाल यहाँ तक क्लियर है सबको? Bisher ist klar, ना? Was ist Subjekt, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. Klar? Okay, sehr gut. Dann auf Englisch. Englisch में haben wir viele Zeitformen. We have a lot of tenses. बहुत सारे tenses होते हैं. So Beispiel auf English. English की अगर बात की जाए, so haben wir हाँ present indefinite होता है, present continuous होता है, future होता है. बहुत सारे tenses होते हैं. Aber im Deutschen, German में sagen wir nur ich esse heute Pizza. Ich esse heute Pizza का मतलब ये भी है कि मैं आज पिज्जा खाता हूँ. इस सेंटेंस का मतलब ये भी है कि मैं आज पिज्जा खा रहा हूँ. और इस सेंटेंस का मतलब ये भी है कि मैं आज पिज्जा खाऊंगा. अगर मुझे कहना हो कि मैं कल पिज्जा खाऊंगा, कल, फ्यूचर, सो कल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम? Morgen. morgen. Sehr gut. morgen. morgen bedeutet tomorrow. morgen कहा जाता है tomorrow यानी कल को. अगर मुझे कहना हो कि मैं कल पिज्जा खाऊंगा, I will eat pizza tomorrow, then sage ich, मैं कहूंगा ich esse morgen Pizza. Ich esse morgen Pizza. Verstehen Sie? तो ऐसा नहीं है कि जर्मन में फ्यूचर नहीं होता. जर्मन जबान में फ्यूचर टेंस होता है. Und das lernen wir im A2 वो A2 में पढ़ेंगे. लेकिन डेली लाइफ कन्वर्सेशन में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता. Benutzt man immer Präsens beim Alltagsgespräch. Daily Life Conversation में im Alltagsgespräch beim Sprechen benutzen wir immer
प्रेजेंस, हमेशा प्रेजेंस यानी प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप फ्यूचर की बात करो या कंटिन्यूअस की बात करो या इंडेफिनिट की बात करो। पास्ट की बात की जाए तो उसके लिए परफेक्ट के जुमले होते हैं, das lernen wir auch im A1। A1 में इंशाल्लाह आगे चलकर परफेक्ट के जुमलों को भी कवर करेंगे कि मैं पिज्ज़ा खा चुका हूँ, das lernen wir auch, इसको भी देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि प्रेजेंट, प्रेजेंट indefinite, present indefinite, present continuous und future या future continuous। इन तीनों टेंसेस को कंबाइन करके जर्मन में सिर्फ एक ही टेंस फॉर्मुलेट किया जाता है। Und dieser Satz hat nur drei Elementen. The sentence has only three elements: subject, verb and object. Verstehen Sie? Klar? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, खेलने को क्या कहा जाता है? Spielen। Ich spiele Fußball। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। Ich spiele Fußball। मैं फुटबॉल खेलूंगा। Ich spiele Fußball। मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। Ich spiele morgen Fußball। मैं अगले हफ्ते फुटबॉल खेलूंगा। Ich spiele nächste Woche Fußball। Einfach, simple। Naschid, hast du noch Frage? जी सर। हम्म, सर ये सेंटेंस सही होगा कि इश स्पीले फुटबॉल मॉर्गन, या बिल्कुल ये सही गलत होगा, होगा? बिल्कुल सही होगा। Das schauen wir gleich, Naschid, इसको अभी देखते हैं आगे चलकर। ओके, फिलहाल यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, aber warum steht hier Schloss? यहाँ Schloss यानी ताला क्यों है? यहाँ लॉक क्यों है? लॉक को कहा जाता है Schloss। ओके, Schloss। यहाँ Schloss यानी ताला क्यों लगा हुआ है? Was bedeutet das? इसका क्या मतलब है? कौन बताना चाहेगा? नशित? वर्ब चेंजिंग। हम्म, सर सर वर्ब वर्ब की पोजीशन जो है वो पोजीशन चेंज नहीं करता। sehr gut, sehr gut। ये जो लॉक है यहाँ पर, ये शो करता है कि वर्ब की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी सेंटेंस में। Verb steht immer auf Position 2। Verb will be always on position 2। Das haben wir gerade gesehen, ना? ये अभी हमने देखा कि the verb always stays on the second position in the main sentence। verb की पोजीशन हमेशा सेकंड रहेगी। Subject, time और object can move। ये मूव कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बट लेकिन the verb position never changes। verb की पोजीशन चेंज कभी नहीं होगी। Ich esse heute Pizza। मैं आज पिज्जा खा रहा हूँ। Sie haben drei Möglichkeiten। You have three possibilities। आपके पास तीन तरीके हैं इस सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के। Zum Beispiel kann man sagen, ऐसे भी कहा जा सकता है कि Ich esse heute Pizza। मैं आज पिज्जा खा रहा हूँ। Ich esse heute Pizza। Kann man auch sagen, ऐसे भी कहा जा सकता है कि heute esse ich Pizza। मैं पिज्जा खा रहा हूँ, यानी आज मैं पिज्जा खा रहा हूँ। Kann man auch sagen, ऐसे भी कहा जा सकता है Pizza esse ich heute। पिज्जा खा रहा हूँ मैं आज। All is incorrect, सब ठीक हैं। Subject, time and object can move। सब्जेक्ट, टाइम और ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं, बट नॉट द वर्ब। वर्ब कभी मूव नहीं करेगा। verb steht immer auf Position 2। verb will always remain on second position। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आई सबके? सो इन these Satz इश क्या है? सब्जेक्ट, heute टाइम यानी एडवर्ब, और पिज्जा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, टाइम एंड ऑब्जेक्ट कैन मूव, बट
वर्ब पोजीशन नेवर चेंजेस, वर्ब कभी चेंज नहीं होगा। ओके, हाँ हुमेरा, हाजुनाफ, आगे कोई क्वेश्चन? यस सर। सर तो हम ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकते जैसे ऐसे इश heute पिज्जा। 9. Verb steht immer auf Position 2. Verb सेंटेंस में हमेशा हमेशा सेकंड पोजीशन अक्वायर करेगा, हमेशा। ओके, ओके सर, थैंक यू। सर सर इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, इश ऐसे पिज्जा हाउट। इश ऐसे पिज्जा होइटे बिल्कुल हो सकता है, होइटे बाद में भी आ सकता है, बिल्कुल होइटे बाद में भी आ सकता है। ओके, klar, यहाँ तक बात समझ आई सबकी? यस सर। Sehr gut. Dann gehen wir weiter, आगे चलते हैं। Zum Beispiel, ich esse heute Pizza. मैं आज पिज्जा खाऊंगा। Heute esse ich Pizza. आज मैं पिज्जा खाऊंगा। Hier steht, यहाँ लिखा हुआ है कि das Verb steht immer auf Position 2. Verb हमेशा second position पर रहेगा। Das Subjekt steht rechts. Rechts means right. Subject right पे भी हो सकता है, oder links और left पे भी हो सकता है। Form verb के सब्जेक्ट वर्ब के लेफ्ट पे भी आ सकता है और राइट पे भी आ सकता है। Und auch wichtig, और एक और जरूरी बात, auf Position 1, फर्स्ट पोजीशन पर, können zwei oder mehrere Wörter stehen. फर्स्ट पोजीशन पर एक या एक से ज्यादा लफ्ज भी आ सकते हैं। Zum Beispiel, zum Beispiel, am Abend means in the evening. Am Abend means in the evening. Essen wir Pizza, शाम में हम पिज्जा खाते हैं। In the evening we eat pizza, शाम में हम पिज्जा खाते हैं। Oder wir essen am Abend Pizza, हम शाम में पिज्जा खाते हैं। Ahmed und Ali essen zusammen, 25 से शाम होगा। अहमद और अली मिलकर, zusammen means together, मिलकर, वो मिलकर 25 बर्गर खा गए। अहमद उन अली जिन प्लूरल ना, klar, वर्ब की पोजीशन समझ आई सबको। दस इस गांस विशेष ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में इसकी बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। वर्ब की पोजीशन अगर आपने डिस्प्लेस कर दी तो आपका पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। klar, इसीलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। Verb steht immer auf Position 2. Verb हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहेगा, चाहे वो कोई भी वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, haben हो, sein हो, या कोई infinitive verb हो, या conjugated verb हो। Verb steht immer auf Position 2 in a main sentence. Klar? Bilal, Ali Nawaz, Ali Farouk, Fatma, Fiza, Humaira, Alles klar. Ikra, Javeria, Mariam, alles klar? Mati, Mirza Ali, Yes, sir. Hume Habiba, Yasir, Nehal, Shahid. Sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं। Zum Beispiel, ich wohne in Berlin. In diesem Satz, इस सेंटेंस में ich ist ein Subjekt, ich क्या है, एक सब्जेक्ट है। wohne, wohne ist ein Verb und Berlin ist ein Objekt, बर्लिन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैं बर्लिन में रहता हूँ, ich wohne in Berlin, aber was ist wohne, wohne क्या है, woher kommt aus wohne, wohne कहाँ से आया, wohne kommt aus wohnen, wohnen means to live यानी रहना। अब wie conjugate man wohnen, wohnen को कैसे conjugate किया जाएगा mit verschiedenen Subjekten, मुख्तलिफ subjects के साथ। Hier schreiben wir Verb-Konjugationen, यहाँ पे हम लिखेंगे verb की conjugations, जो verb हम इस्तेमाल करेंगे। Zum Beispiel, मैं बर्लिन में रहता हूँ, ich wohne in Berlin, ich wohne, ओके। तुम बर्लिन में रहते हो, du
wohnst in Berlin. Sie Du wohnst in Berlin. तुम बर्लिन में रहते हो. आप बर्लिन में रहते हैं. Sie wohnen. wohnen. Sie wohnen in Berlin. Ihr wohnst. वो बर्लिन में रहता है. He lives in Ihr, Berlin. ihr wohnt, Wohnt. Er wohnt. wohnt, Sehr gut. Wir wohnen. निहाल बर्लिन में रहता है. निहाल. wohnt, Sehr gut. Nihal wohnt. Nihal ist auch eine dritte Person Singular. Nihal भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है. जी सर. हम बर्लिन में रहते हैं. Wir wohnen, Wohnen. wohnen in Berlin. वो लोग they live in Berlin. वो लोग बर्लिन में रहते हैं. Sie Wohnen. wohnen. तुम लोग Ihr बर्लिन में रहते हो. Ihr Ihr wohnt. wohnt, wohnt. Ihr wohnt means तुम लोग बर्लिन में रहते हो. Klar. यासिर, हमजा, फैसल, दानियाल, मिस नुसरत, हुमैरा, अलस्कला, मिर्जा, बिलाल, दुआ, ज़ेरा. Sehr gut. Dann ich esse einen Apfel. Ich esse einen Apfel. मैं सेब खा रहा हूँ या मैं सेब खाता हूँ. Okay? Ich esse einen Apfel. Einen means n. Okay? Das ist ein unbestimmter Artikel. ये एक unbestimmte यानी indefinite article है. Okay? और articles को लेकर confuse ना हो. 10 लेनिन व्यश बेटा इसको आगे चलकर कवर करेंगे. Ich esse einen Apfel. मैं एक सेब खा रहा हूँ. Ich esse. तुम सेब खा रहे हो. Du ist, isst. Sehr gut. Du isst einen Apfel. आप सेब खा रहे हैं. Sie essen, essen einen Apfel. अली नवाज सेब खा रहा है. अली ist, नवाज इस्ट. Ist. Sehr gut. हम सेब खा रहे हैं. Wir essen, essen. Sehr gut. वो लोग सेब खा रहे हैं. Sie essen. Sie essen Apple. अली और यासिर सेब खा रहे हैं. अली Ali und Yasser und Yassir एसन essen essen. Sehr gut. einen Apfel. Einen Apfel. Okay, Apfel. Apfel. इसको अलिफ Apfel. मद्दा से प्रोनाउंस किया जाता है ना. आ. Klar? Sehr Yes, gut. sir. तुम लोग सेब खा रहे हो. तुम लोग इहा एस्ट esst, Esst einen Apfel. Sehr gut. Sehr gut. Klar? या तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर. Sehr gut. Dann du trinkst Wasser. Was bedeutet dieser Satz? Sentence का क्या मतलब हुआ? Du trinkst Wasser. तुम पानी पीते हो? तुम पानी पीते हो या तुम पानी पी रहे हो. Du trinkst Wasser. Woher kommt aus trinkst? Trinkst कहाँ से आया? Do की वजह से. ट्रिंकन से. Trinken की वजह से. Sehr gut. Trinkst kommt aus trinken. ये trinken से आया. Trinken means to drink पीना. यानी पीना. पीना. मैं पानी पी रहा हूँ. Ich Trinke. trinke Wasser. Drink. तुम कोला पी रहे हो. Du trinkst. ड्रिंक्स. Du trinkst कोला. तुम कोला पी Cola. रहे हो. आप कोला पी रहे हैं. Sie Trinken. जी Die ड्रिंकन. trinken Cola. in Cola. Trinked. Sehr gut. हाँ. दानियाल कोला पी रहा है. Trinked. दानियाल Daniel trinkt trinkt Cola. कोला. Trinked. हम कोला पी रहे हैं. Wir Trinken. trinken, trinken We are trinken Cola. कोला. वो लोग कोला पी रहे हैं. जी sie ड्रिंकन. trinken, trinken कोला. मती और फैसल कोला पी रहे हैं. Trinken. मती und फैसल trinken. Sehr gut. तुम लोग कोला पी रहे हो. Trinkt. Iha ihr Iha trinkt trinkt, Cola. Sehr gut.
Trinken ist regelmäßige oder unregelmäßige Verb? Regal. Regelmäßige Verb. Sehr gut. Ja. Regular Verb? Regular Verb. Yes, sir. Sehr gut. Wir lesen ein Buch. Was bedeutet lesen? Lesen means Read. To read. to read Read. यानी पढ़ना. Wir lesen ein Buch. हम एक किताब पढ़ रहे हैं. Lesen. Lesen ist regelmäßig oder unregelmäßig? Unregelmäßig. Unregal. Unregelmäßig. Sehr gut. Means irregular verb. ये irregular verb है. Was bedeutet unregelmäßig और irregular? इसका क्या मतलब हुआ? सर इसकी स्टेम भी हाँ। चेंज होगी जब Verbs conjugate stem will be करेंगे changed. Sehr gut. मैं as per किताब subject. पढ़ रहा हूँ. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. Ich Ich esse. lese. Sorry, It's lesen. lazy. Lazy. Ich lese ein Buch. Ein Buch. तुम किताब पढ़ रहे हो. Du Do Do list. least. Du liest. L-I-E-S-T. Liest. du liest ein Du Buch. liest. Ein Least. Buch. आप किताब पढ़ रहे हैं. Lesson. Do listen. Sie lesen. Sie lesen. Sie lesen. Lesen ein Buch. Ihr, Lesen. ihr, वो किताब पढ़ रही है. ihr liest. L- Liest. वो किताब पढ़ रही है. Sie liest Liest. ein Buch. Liest. हुमैरा किताब पढ़ रही है. हुमैरा Liest. Least. liest ein Buch. Ein Buch. हम किताब पढ़ रहे हैं. Wir Lesen. Listen. lesen ein Buch. Listen. हुमैरा और जवेरिया किताब पढ़ रही हैं. Lesen. लेजन ओडा वो लोग किताब पढ़ रही हैं. जी लेजन. Klar? Sehr gut. तुम लोग किताब पढ़ रहे हो. तुम लोग. Lest. Yeah, list. Liest. Lest. Lest. Hier ist der Lest. Unterschied zwischen liest und lest. Klar? Liest. Du liest. Und ihr Lest. lest. Klar? Lest. Ja. Lest. Lest. Liest. Verstehen Sie? समझ आ रहा है. सबके ऊपर से जा रहा है. हमजा, नशीद, फैसल, दानियाल, मती, alles klar? Fatma, du, Azera, Bilal, Fiza, Miss Nusrat Ali Nawaz. Okay, sehr gut. Yes. Sie lernen Deutsch. Was bedeutet lernen? Lernen means Student. to learn, To सीखना. learn. They learn German. वो लोग जर्मन सीख रहे हैं या जर्मन सीखते हैं. मैं जर्मन सीख रहा हूँ. Ich Learning. lerne Lerne. Deutsch. Deutsch. Lernen ist regelmäßig oder unregelmäßig? Regelmäßig. People. Regelmäßig. Sehr gut. Regular verb. तुम जर्मन सीख रहे हो. Du Du lernst Lernst. lernst Deutsch. Deutsch. आप जर्मन सीख रहे हैं. Sie Lernen. Sie lernen Deutsch. lernen Deutsch. वो जर्मन सीख रहा है. Learn. Learn. Lernt Deutsch. Lernt Deutsch. मतीउल्लाह जर्मन सीख रहा है. मतीउल्लाह Learned. Learn. Mathiula lernt Deutsch. Sehr gut. हम जर्मन सीख रहे हैं. Wir Lernen. Wir Wir lernen lernen Deutsch. Deutsch. lernen Deutsch. वो लोग जर्मन सीख रहे हैं. Lernen. Sie lernen. Sie Sie lernen lernen. Deutsch. दानियाल और बिलाल जर्मन सीख रहे हैं. Lernen. Daniel und Bilal lernen Deutsch. lernen Deutsch. तुम लोग जर्मन सीख रहे हो. तुम लोग Learned. Ihr Learn. lernen Deutsch. Klar? Ihr lernt Deutsch. Sehr gut. Dann ich kaufe eine Banane. Ich kaufe eine Banane. I buy a banana. Was ist kaufe? Buy. Kaufe is verb.
Kaufe ist ein Verb. Woher kommt aus Kaufe? Kaufe kommt aus Kaufen. kaufen. Kaufen means Kaufen. to buy. खरीदना To buy, खरीदना. मैं केला खरीद रहा हूँ. Ich Kaffee. kaufe कॉफी आईने eine Banane बनाने oder Bananen. Okay, Bananen. Bananen means plural. मैं केले खरीद रहा हूँ. तुम केले खरीद रहे हो. Du Kaufst. Banana. kaufst. Sehr gut. Kaufen regelmäßig oder unregelmäßig? Regal. रीगल मैसेज Regelmäßig. Regelmäßige. आप केले खरीद रहे हैं. Sie जी kaufen Sie kaufen. kaufen. Sehr gut. वो केले खरीद रहा है. Er ihr kauft. kauft Kauft. Ihr oder er? er Er kauft. Er. ओके. इहा तो इसे कहा जाता है तुम लोगों को. Klar? Yes. हम लोग केले खरीद रहे हैं. Wir Kaufen. Wir kaufen kaufen. kaufen. Banana. वो लोग केले खरीद रहे हैं. Sie kaufen. Sie Sie kaufen. kaufen. तुम लोग केले Banane. खरीद रहे हो. तुम लोग ihr kauft Er Ihr kauft. 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 Sehr gut. Klar? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. yes Sehr sir. gut. Dann gehen. Gehen means to go, यानी जाना. Wir gehen, हम जा रहे हैं. Heute, आज. Ins Kino. Ins Kino means हम आज सिनेमा जा रहे हैं. ये जो ins है, ins, ये एक्चुअली preposition है in. ओके, इन है, हम सिनेमा में जा रहे हैं. और ये ins क्यों हो गया? बिकॉज जो कीनो है सिनेमा, उसका जो आर्टिकल है वो डस होता है ना. डस कीनो. क्योंकि कीनो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल नाउन है, उसका कोई जेंडर नहीं होता. तो ऐसे नाउन जिनका कोई जेंडर नहीं होता, उनके साथ जो आर्टिकल यूज किया जाता है वो क्या होता है? डस. That's तो सेंटेंस कुछ ऐसा था कि वी आर गेन heute इन डस कीनो. हम आज सिनेमा जा रहे हैं. तो जर्मन में प्रपोजिशन को और आर्टिकल को कंबाइन करके लिख दिया जाता है इंस. ओके. इसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है. इसको भी आगे चलकर देखेंगे इंशाल्लाह. सो वी आर गेन heute ins Kino. Kino. हम आज सिनेमा जा रहे हैं. मैं आज सिनेमा जा रहा हूँ. मैं ich Ich Gehe. gehe heute ins Kino. heute ins Kino. Javiria, hast du noch Frage, कोई क्वेश्चन? यस, वैसे हम अगर सेंटेंस में इस तरह लिखना चाहें इन द स्कीनो तो ये भी बिल्कुल. लिख सकते हैं. बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है. ठीक है. Das ist auch richtig. मैं आज सिनेमा जा रहा हूँ. Ich gehe heute in das Kino. तुम आज सिनेमा जा रहे हो. Du Yes. gehst. Du gehst. Gehen. Regelmäßig oder unregelmäßig? Regel. Regelmäßig Regelmäßig. यानी regular verb. आप आज सिनेमा जा रहे हैं. Sie gehen gehen. Sehr gut. Sie gehen Heute heute ins Kino. ins Kino. वो आज सिनेमा जा रहा है. Er Geht. geht Er geht heute ins Kino. हम आज सिनेमा जा रहे हैं. Wir 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 gehen gehen. heute Gehen. ins Kino. heute ins Kino. वो लोग आज सिनेमा जा रहे हैं. They are going to the cinema today. Sie gehen Sie gehen heute heute ins Kino. ins Kino. Klar? Yes, sir. तुम लोग आज सिनेमा जा रहे हो. तुम Gehen. लोग इहा Ihr geht. Er geht geht heute ins Kino. heute ins Kino. मैं आज सिनेमा जा रहा हूँ. Ich
Gehe Gehe. gehe heute ins Kino. ins Kino. Kann man auch sagen, ऐसे भी कहा जा सकता है क्या कि heute gehe heute ich gehe ich ins Kino. आज जा रहा ये भी हूँ ठीक है, मैं सिनेमा। यस सर, ये भी ठीक है ना? Sehr यस gut. सर, जी जा रहा हूँ Sehr मैं gut. सिनेमा। और अगर मैं कहूँ कि heute ich gehe ins Kino, ये भी ठीक है ना? No, नहीं sir. सर, क्यों? नहीं नो सर सर, वर्ब की पोजीशन चेंज हो गई। Sehr gut. Verb steht immer auf Position 2. Verb हमेशा second position पर रहेगा. Klar? यस सर, Sehr gut. Then, how to ask a question? Question sentence कैसे formulate किया जाए? Bis jetzt haben wir nur einfachen Sätze gesehen. अभी तक हमने बहुत simple sentences को देखा कि मैं पानी पी रहा हूँ, तुम सिनेमा जा रहे हो, हम खाना खा रहे हैं. Aber wie man die Fragen formuliert, कैसे questions को formulate किया जाएगा? Zum Beispiel, du hast ein Auto. Du hast ein Auto. You have a car. तुम्हारे पास एक गाड़ी है. In diesem Satz, इस सेंटेंस में was ist Subjekt? Subject क्या है? Du, Du. Du Subjekt. Und Verb? Hast hast ist ein Verb, ne? Hilfsverb. Und Auto, in diesem Satz, Auto ist ein Objekt. Auto एक गाड़ी यानी ऑब्जेक्ट है. Objekt. Du hast ein Auto. तुम्हारे पास एक गाड़ी है. How to formulate a question sentence? Question sentence कैसे formulate किया जाएगा? If I want to ask कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? Wie fragt man? कैसे पूछा जाएगा? Hast du ein Hast du ein Auto? Hast du What ein is the Auto? rule? Rule क्या है? Rule क्या है? Verb Verb first पर आ second. जाता. Very good. सेकंड पोजीशन पर मौजूद जो वर्ब है वो हाँ बस हमेशा जंप करके कहाँ आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर. Das konjugierte Verb kommt immer am Anfang. Am Anfang means at the beginning. Verb comes always at the beginning only in the question sentence. सिर्फ question sentence में ऐसा होगा. Verb सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा. तो ये सेंटेंस अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वेश्चन Question. सेंटेंस में. क्वेश्चन Question में sentence. Hast du ein Auto? Do you have a car? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? Klar? Sehr gut. Zum Beispiel, wir gehen heute ins Kino. Oder wir gehen ins Kino. हम सिनेमा जा रहे हैं. Wie formuliert man eine Frage? एक सवाल कैसे जनरेट किया जाएगा? सवाल कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा? कि आर वी गोइंग टू सिनेमा? क्या हम सिनेमा जा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द रूल. रूल के हिसाब से क्या होगा? gehen wir Sehr gut. Gehen wir ins Kino. Gehen wir ins Kino? Gehen wir ins Kino? According to the सर rules ओनली क्या हुआ? क्वेश्चन में ही वर्ब अपनी पोजीशन चेंज करेगा. बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन में. क्वेश्चन ओके सर, Verb kommt immer auf Position 1. Verb always comes on the first position oder am Anfang at the beginning. When we formulate a question sentence, gehen wir ins Kino? क्या आज हम सिनेमा जा रहे हैं? या wir gehen heute ins ओके Kino. आइंस हाँ, हम आज सिनेमा जा रहे हैं. Oder या फिर nein. Nein means no. Wir gehen heute nicht ins Kino. आज हम सिनेमा नहीं जा रहे. Nicht means not. नहीं. नहीं. Klar? Und diese Fragen heißen Ja-Nein-Fragen. In questions को क्या कहा जाता है? Ja-Nein-Fragen यानी Yes-No questions. ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ दो तरीकों से ही दिया जा सके. या तो हाँ में या फिर ना में. ऐसे सवालों को कहा जाता है diese Fragen heißen Ja-Nein-Fragen यानी Yes-No questions.
Ja bedeutet, ja bedeutet yes Yes. und nein bedeutet no. No. अगर मैं आपसे पूछूं कि gehen wir ins Kino, क्या हम सिनेमा जा रहे हैं? So Sie haben nur zwei Möglichkeiten. You only have two possibilities. या तो आप इस सवाल का जवाब हाँ में दोगे या इसका जवाब ना में दोगे, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो आप कहोगे या wir gehen ins Kino, हाँ हम सिनेमा जा रहे हैं, या फिर nein नहीं, wir gehen nicht ins Kino, हम सिनेमा नहीं जा रहे। Verstehen Sie? Klar. Sehr gut. Dann zum Beispiel, wohnst du in Berlin? Wohnst du in Ja. Berlin? क्या तुम बर्लिन में रहते हो? Du hast nur zwei Möglichkeiten. You only have two possibilities. Antwortest du mit Ja oder antwortest du mit Nein? या तो आप या से जवाब दोगे या तो nein से जवाब दोगे। Zum Beispiel antwortest du. Antworten, na? Antworten. Antworten means to answer. जवाब देना। Antwortest du. आप जवाब दोगे या ich wohne in Berlin. हाँ मैं बर्लिन में रहता हूँ। ओडा या फिर nein, ich wohne nicht in Berlin. नहीं, मैं बर्लिन में नहीं रहता। Klar? Verstehen Sie? Aber pass Yes. auf. इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि Verb steht immer auf Position 2. Verb हमेशा second position पर रहेगा। Okay? Klar? Miss Nusrat, hast du noch Frage, कोई question? जी सर हमने यहाँ पर नाश्त क्यों लिखा, नेश्त क्यों लिखा? काइने और नेश्त दोनों में Kein में से और nicht में क्या डिफरेंस है? हम्म Kein में और nicht में क्या डिफरेंस है? Okay, das habe ich schon gesagt. ये मैंने बताया था। Wer kann mir sagen? कौन बताना चाहेगा? Was ist der Unterschied zwischen nicht und kein? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? We use both the words. हम इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं in order to negate a sentence, किसी भी सेंटेंस को निगेट करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट से इनकार करने के लिए। निश्चित सर अब जब हम स्टार्ट में नो लगा देंगे तो फिर निश्चित यूज होगा। हाँ, नहीं, इसके अलावा भी कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अली नवाज। सर किसी भी नाउन के साथ हम लगाएंगे काइन। sehr gut. नाउन होड़ा नोमिन, नोमिन यानी नाउन को निगेट करने के लिए। इफ यू वांट टू निगेट अ नाउन, किसी भी नाउन को निगेट करने के लिए बेनुसिन या इम्मा खाइन, हमेशा खाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। जी उन सर वन बेनुट्समान निश्त, निश्त का इस्तेमाल कब किया जाएगा? विद द वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को निगेट करने के लिए, वर्ब्स मींस एक्शनन यानी एक्शंस, एक्शंस एक्शंस को निगेट करने के लिए जी हमेशा nicht का यूज किया जाएगा। Zum Beispiel kommst du bedeutet are you coming, क्या तुम आ रहे हो? Nein, नहीं, ich komme nicht, मैं नहीं आ रहा। In this sentence, इस सेंटेंस में I negate the verb, मैं verb को negate कर रहा हूँ। मैं अपने आने के एक्शन को, आने के अमल को negate कर रहा हूँ। Kommen, in diesem Satz, kommen ist ein Verb. Kommen क्या है? एक verb है। And if I want to negate this verb, अगर मुझे इस verb को negate करना हो, इस action से इनकार करना हो कि नहीं मैं नहीं आ रहा, then benutzt man immer nicht, हमेशा nicht का इस्तेमाल किया जाता है when we want to negate the verb. Zum Beispiel ist das gut,
क्या ये अच्छा है? Gut. Gut ist ein Verb oder Adjektiv? ये वर्ब है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव सर। एडजेक्टिव। sehr gut. एडजेक्टिव है ये। haben wir gerade gesehen, अभी हमने देखा कि we use nicht, हम nicht का इस्तेमाल करते हैं in order to negate a verb or an adjective, एक वर्ब को या एडजेक्टिव को निगेट करने के लिए। क्या ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। Nein, das ist nicht gut, ये अच्छा नहीं है। Gut ist ein adjective, ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को निगेट करने के लिए भी nicht का इस्तेमाल किया जाता है। Klar? Zum Beispiel ist er freundlich? Was bedeutet freundlich? Freundlich means friendly. Friendly. Zum Beispiel, er ist freundlich. Er ist freundlich. वो friendly है. Freundlich ist ein Verb oder Adjektiv. ये verb है या adjective है? एडजेक्टिव है। Adjective है. Sehr gut. वो friendly है. Er ist freundlich. क्या वो friendly है? Ist er freundlich? Nein, er ist nicht freundlich. नहीं, वो friendly नहीं है. We are negating an adjective. Adjective को negate किया जा रहा है. Verstehen Sie? Zum Beispiel, tanzt du? Tanzt du का मतलब है do you dance? क्या तुम नाचते हो? Tanzt, tanzt, kommt aus tanzen. Pronounce with me. Tanzen. Tanzen means to dance, यानी नाचना. To dance. Ist das ein Verb oder Adjektiv? Verb. Verb यानी verb है ये. Aktion, action है. Aktion. And if I want to negate a verb, अगर मुझे किसी भी वर्ब को निगेट करना हो, किसी भी वर्ब से इनकार करना हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता, wie sagt man कैसे कहा जाएगा? Nein, ich tanze nicht. Nicht. We use nicht always when we negate a verb. Klar? Lernst du? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम सीखते हो? Do you learn? Lernst du? Lernst kommt aus lernen. Ist das ein Verb oder Nomen? ये verb है या noun है? Verb. 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 And if I want to negate my action, अगर मुझे अपने action को negate करना हो, इनकार करना हो कि नहीं मैं नहीं पढ़ता, benutze ich kein oder nicht? Kein का use Nicht. करूंगा या nicht का use करूंगा? Nicht. Nicht, sehr gut. Because I am negating my action. मैं action को negate कर रहा हूँ, पढ़ने के अमल को. Nein, ich lerne nicht. नहीं, मैं नहीं पढ़ता. Ich lerne nicht. Klar? Dann spielst du? क्या तुम खेलते हो? Spielen. Spielst kommt aus. Spielen. Ist das ein Verb oder Nomen? Verb. Verb. जी और सर अगर verb। मुझे इनकार करना हो कि नहीं मैं नहीं खेलता, sage ich मैं कहूँगा nein, ich spiele nicht. Spiele nicht. No, I don't play. मैं नहीं खेलता. या मैं नहीं खेल रहा. क्लास समझ आया सबके? जी यहाँ सर। तक क्लियर है कि निश्त का इस्तेमाल कब किया जाएगा? If we want to negate any verb or adjective, किसी भी वर्ब यानी एक्शन को या एडजेक्टिव को Adjective. निगेट करने के लिए, उससे इनकार करने के लिए benutzen wir immer nicht, हमेशा nicht का यूज किया जाएगा. Verstehen Sie? Dann kommen wir auf Nomen. अब noun के ऊपर आते हैं. सर सबसे पहले किसी का क्वेश्चन है? If you have any question, please raise your hand. सर मेरा एक क्वेश्चन था ओके, निहाल. सर सर स्पेशलिस्ट टाइप पे जाएगा
सर इसके अंदर अगर हम लोग 9 नहीं भी बोलेंगे तभी चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। सही है। लाइक 9 हम लोग वैसे किस उसमें फॉर्मल उसमें 9 इस्तेमाल तो करेंगे या एक फिर एक्सप्रेशन है। ये जो 9 है ये एक एक्सप्रेशन कह लो इसको, या इम्प्रेशन कह लो। जैसे कोई भी आपसे डेली लाइफ कन्वर्सेशन में या पूछता है कि निहाल क्या तुम खेलते हो, तो निगेट तो आप उसको बाद में करते हो, लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन है वो फौरन से ये होता है नहीं, नहीं? मतलब नहीं मैं नहीं खेलता। तो ये जो पहले आपने नहीं इस्तेमाल किया ये आपका एक एक्सप्रेशन था, इंस्टेंट एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। ओके, सही सर। तो इसका एक्सप्रेशन का आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, तो इससे कोई फॉर्मल और इनफॉर्मल की तो वही इसमें वो नहीं है ना? बिल्कुल बस नहीं, इसमें कोई नहीं है। अभी। मिस नुसरत हाजुन आपका आगे कोई क्वेश्चन? जी सर, इसी सेंटेंस में अगर हम ये सेंटेंस ना लिखें, सिर्फ एक्सप्रेशन दें, इस स्पिले निश्ट ना लिखें और नहीं बता दें, तो ये भी सही नहीं है क्या? ठीक है ये, लेकिन बाय एक्सप्रेशन ड्यूरिंग स्पीकिंग कैजुअली अगर आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या घर में तो ऐसा ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर पे एग्जाम में ये ठीक नहीं है। ओके, ठीक है, सही। बिकॉज एग्जाम में तो नंबर ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के होते हैं। अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गायब कर दिया तो नंबर भी गायब। जी ओके, सर। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। वेरी गुड। तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। निश्चित। ओके, then come ऑफ नॉमिन। अब नाउन के ऊपर आते हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है? वह खान मियां जागन कौन बताना चाहेगा? हम्म, किसी भी नाउन को कैसे पहचाना जाता है? मिस सर नुसरत? कैपिटल कैपिटल लिखा होता है स्टार्ट उसका। वेरी गुड। नाउन always be find with a capital letter. Nomen kommt immer mit einem großen Buchstaben. नाउन हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा हुआ मिलेगा, चाहे वो सेंटेंस की शुरुआत में हो, सेंटेंस के दरमियान में हो, या सेंटेंस के इख्तिताम पे हो। नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा हुआ दिखेगा। अगर तो कैपिटल लेटर नहीं है इसका मतलब वो नाउन नहीं है, अगर वो नाउन है तो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। Zum Beispiel in diesem Satz, इस सेंटेंस में Auto, Auto ist ein Nomen, Auto एक नाउन है। Hast du ein Auto? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? If I want to negate a verb, अगर मुझे किसी भी वर्ब को oder ein adjective या किसी एडजेक्टिव को निगेट करना हो तो मैं क्या यूज करता हूँ? निश्ट। निश्ट। बट, लेकिन, अब when I want to negate a noun, मुझे किसी भी नाउन को निगेट करना हो, then benutze ich kein nicht। अब मैं nicht का इस्तेमाल नहीं कर सकता, sondern बल्कि benutze ich immer kein, हमेशा kein का इस्तेमाल करूंगा। If I want to negate a noun, अगर मुझे कहना हो कि I don't have a car, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, ich habe kein Auto, pronounce with me, kein Auto, काइन आउट। ich काइन habe आउट। kein Auto, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। Hast du Geld, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Ich habe kein Geld. Geld, पैसे, Nomen, Geld ist ein Nomen. Hast du Geld, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Nein, ich habe kein Geld. मेरे पास कोई पैसे नहीं है। Warum benutzt man kein? Kein का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल Sehr नाउन को gut. Geld निगेट ist करना। ein Nomen. Geld एक नॉमिन या नाउन है, नाउन को निगेट किया जा रहा है, किसी भी नाम को। Nomen ist ein Name. Nomen तो एक नाउन, नेम है किसी भी चीज का, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो। नाशिद, हाजुना फ्रागे? यस सर। सर ये काइन और काइने कब इस्तेमाल होगा, वो कैसे पता चलेगा? काइन और काइने। Ich habe
kein Geld, मेरे पास कोई पैसे नहीं है. Ich habe keine Zeit, मेरे पास वक्त नहीं है. keine, the ending of kind की जो ending है वो डिपेंड करती है उसके साथ लगे हुए नाउन के जेंडर के ऊपर. Ob das Nomen maskulin, feminin oder neutrum ist, कि वो जो नाउन साथ में लगा हुआ है उस नाउन का जेंडर क्या है, वो जेंडर मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है, उसके हिसाब से काइन की जो एंडिंग है वो चेंज होती है. उन 10 लेनन वी स्पेड ओके, इसको आगे चलकर कवर करेंगे जब हम आर्टिकल्स को देखेंगे तो. क्ला फिलहाल आप ये याद रखें कि नाउन को निगेट करने के लिए हमेशा काइन का यूज किया जाता है. क्ला किसने पूछा था यस क्वेश्चन? सर। नशिद, alles klar. ओके निहाल, hast du noch Frage, कोई क्वेश्चन? रियली सॉरी बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये खाइन हम लोग नाउन के लिए यूज करते हैं तो फिर हम लोग नाइन जो है वो भी तो उसको हम लोग यूज कर रहे थे इसके लिए. नाइन एक इम्प्रेशन है. नाइन एक इम्प्रेशन है. नाइन का इस्तेमाल आप ना भी करो निहाल तो ठीक है. नहीं नहीं सर, शुरू में नहीं पूछ रहा मैं, जैसे हमने यहाँ पे काइन बोला है, ऊपर हम लोग निश्ट बोल रहे थे ना. हम्म, निश्ट, सॉरी निश्ट की बात कर रहा हूँ. निश्चित निश्ट हम लोग एंड में जब बोलेंगे तो निश्ट बोलेंगे. नहीं, एंड में या शुरू में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. निश्चित और काइन पे फर्क किस चीज से पड़ता है, कौन बताएगा? वेमिस्ट, निहाल या क्लेन, कौन निहाल को एक्सप्लेन करना चाहेगा आसान अल्फाजों में? सर वर्ब को और एडजेक्टिव को अगर निगेट करना है तो फिर निश्चित लगेगा, निश्चित यूज होगा. वर्ब क्या होता है? एक्शन. एक्शन. एक्शन यानी अमल. यस सर. zum Beispiel spielen, खेलना. essen, यस खाना. सर. gehen, जाना. schlafen, सोना. wohnen, रहना. trinken, पीना. खाना पीना खेलना कूदना आना जाना सोना उठना बैठना. अमल, ये सब एक्शन, एक्शन है. वर्ब. और वर्ब को निगेट करने के लिए, वर्ब से इनकार करने के लिए निहाल निश्चित का इस्तेमाल किया जाएगा. ओके सर. मैं खेलता हूं, ich spiele. मैं नहीं खेलता, ich spiele nicht. सही मैं है. खाता हूँ, ich नाउन. esse. मैं नहीं खाता, ich esse nicht. मैं पीता हूँ, ich trinke. मैं नहीं पीता, ich trinke nicht. एक्शन, एक्शन को निगेट करने के लिए निश्चित का इस्तेमाल किया जाएगा निहाल. जबकि काइन का इस्तेमाल कब किया जाएगा यासिर? नाउन के लिए. काइन का सर नाउन के लिए. नाउन के लिए. नाउन क्या है? नाउन इज काइन एक्शन. नाउन कोई एक्शन नहीं है. नाउन एक्शन नहीं है. नोमिन इज ein नामिन. नोमिन या नाउन तो एक नाम होता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का नाम. गाड़ी है, कुर्सी है, टेबल है, लैपटॉप, मोबाइल. नाम किसी भी चीज का नाम. नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. क्ला निहाल. और नाउन को निगेट करने के लिए विनट्समान इम्मा खाइन, हमेशा खाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, निश्चित का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. हाज दु ein Auto, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? Nein, ich habe kein Auto, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है. Hast du Geld, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Nein, ich habe kein Geld, मेरे पास कोई पैसे नहीं है. We don't negate the action in this sentence. हम इस सेंटेंस में किसी एक्शन या किसी अमल से इनकार नहीं कर रहे. हम तो एक चीज जिसकी पोजीशन होती है उस सिर्फ उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं. कि तुम्हारे पास पैसे हैं, नहीं है? यासिर, हाजुन सर अफ्खागे. मेरा, यस सर, ये जब पेपर में ये स्ट्रक्चर लिखना होगा सेंटेंस का तो उसमें नाइन लिखना लाजमी है. हाँ नहीं, मर्जी है आपकी, नाइन लिखे या ना लिखे. लेकिन जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं, यस नो क्वेश्चंस, उनमें जी या सर. और नाइन लिखा जाता है. ओके. ओके ओके सर, वैसे मतलब ज़्यादा बेहतर है नाइन लिखना. एग्जाम में ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि आपको लिखना हो यस नो क्वेश्चन या उसका जवाब. स्पीकिंग में होता है ऐसा एग्जाम में.
तो स्पीकिंग में आप या और नाइन वैसे भी बोल ही देते हो, इंप्रेशन आपका वैसे ही होता है. ओके, ओके सर, ओके सर। sehr gut. Hast du Schwester? Schwester, was ist Schwester? सिस्टर। Schwester means sister. Und der Gegenteil, इसका Gegenteil या opposite क्या होता है? ब्रूडा। बहुदा। Bruder, Bruder. बूढ़ा. Hast du Schwester? Do you have a sister? Nein, ich habe keine Schwester. No, सिस्टर। nein, ich habe keine Schwester. Keine. Keine फेमिनिन नोमिन के साथ आता है. जो ई आपको दिख रहा है ना, ये यस सर। फेमिनिन नोमिन के साथ आता है अगर कोई नाउन फेमिनिन हो तो. और अगर मैं आपसे पूछता कि हाज दु ब्रूडा, क्या तुम्हारा कोई भाई है, तो आप कहते नाइन इश हाबे खाइन काइन ब्रूडा. बूढ़ा. खाइन ब्रूडा, क्योंकि ब्रूडा का जो जेंडर है वो क्या होता है? मस्कुलिन. ला, sehr gut. Hast du ein Buch? क्या तुम्हारे पास किताब है? Ja, ich habe ein Buch. हाँ, मेरे पास किताब है. Oder nein, ich habe kein Buch. मेरे पास कोई किताब नहीं है. Kein Buch. यहाँ nicht का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता था. Ich habe nicht Buch. ना? नो सर। क्यों नहीं? नो सर, बुख. बुख एक नाउन है सर. सर नाउन। Buch एक किताब है. आपको कैसे पता चला कि ये बुक एक नाउन है? कैसे पता चला? सर बी कैपिटल। कैपिटल लेटर से. Sehr gut, sehr gut. Hast du Freunde? कि तुम्हारे दोस्त हैं? Freunde, Freunde sind plural, यानी friends. क्या तुम्हारे दोस्त हैं? Nein, ich habe keine Freunde. No, I don't have any friends. मेरे पास कोई दोस्त नहीं है. keine Freunde, जो keine में आपको ई दिख रहा है, ये ई दो केसेस में आता है. फेमिनिन नोमिन के साथ और प्लूरल यानी प्लूरल नाउन के साथ. Ich habe keine Freunde. फिलहाल खाइन और खाइने में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का. आज का जो टॉपिक है वो निश्त और खाइन है, उसमें कंफ्यूजन होनी चाहिए. और कोई कंफ्यूजन है अगर मैंने was nicht klar ist, dann frag mal, पूछ ले. अली नवाज, यासिर, अली फारूक, बिलाल, दुआ जहरा, फातिमा, फिजा, हुमैरा, इकरा, जवेरिया, अलिस्कला, मिर्जा, मती, मरियम, मिस नुसरत, दानियाल, फैसल. समझ आ रहा है सबके? उमर शाह, उम्मे हबीबा, यस सर. निहाल, नाशिद. Sehr gut. Dann gehen wir zurück, वापस चलते हैं. आई होप कि हाँ, निश्त में और खाइन में डिफरेंस क्लियर होगा. यस Dann सर. यस सर। formulieren wir ein paar Ja-Nein-Fragen. ना कुछ Yes-No-Questions को फॉर्मुलेट करते हैं. जिससे पूछूंगा वो बताएगा und die Reste schreiben in Chat. बाकी जो लोग हैं वो चैट में लिखेंगे उसके आंसर को. Und pass auf, pay attention. Whether you are negating a noun or an action. इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप अपने जवाब में किसी नाउन को निगेट कर रहे हैं या किसी वर्ब को, उसके हिसाब से आप निश्त का और काइन का यूज करोगे. अब अलग से आपको कोई नहीं बताएगा कि किस सेंटेंस में निश्त यूज करना है, किस सेंटेंस पे काइन. इसका ख्याल आपको खुद रखना है. ओके, sehr gut. Dann meine erste Frage mit शाहिद. शाहिद, hörst du mich? मेरी आवाज आ रही है आपको? शाहिद, शाहिद, Yes, sir. kommst du Yes, aus sir. Deutschland? Sagst du, Uh, आप कहोगे या. 9. zuerst या, सबसे पहले या Ich. से जवाब दोगे आप. Okay. या. Ich. Ich komme Uh, aus Deutschland. Ich oh, komme aus Deutschland. Deutschland. हाँ, मैं जर्मनी से आया हूँ. Oder nein, 9. Ich ich komme komme nicht
Ich komme nicht, Nicht मैं is नहीं noun. आया हूँ. Kein है. Aus Deutschland. नहीं, मैं जर्मनी से नहीं आया हूँ. You are negating your verb. आप अपने verb को negate कर रहे हो. Okay? Ich komme nicht. It's a noun, Deutschland. Germany, it's basically बिल्कुल a noun. बिल्कुल, लेकिन इस So सेंटेंस we में will आप use अपने kein. अमल को निगेट कर रहे हो आने के, कि मैं नहीं आया हूँ, जर्मनी से नहीं आया हूँ. ओके Okay. बिल्कुल. तो आपको ये देखना है कि आप अपने सेंटेंस में किस चीज को निगेट कर रहे हो. सो बाइस्पील उमर शाह. उमर शाह ह्यूजडुमिश. मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है. ओके उमर शाह. लेट्स टू डॉइच. या ich lerne Deutsch einfach Umar. या ich lerne Deutsch. हाँ मैं जर्मन सीखता हूँ. Oder या Ich, फिर nein, ich bin ich bin oder ich lerne. Ich lerne Deutsch. Deutsch. मैं कोई जर्मन नहीं सीखता. Nicht Deutsch. Nicht oder kein. Nicht. Nicht oder kein. अगर तो आप Keine. अगर तो आप सीखने के अमल को निगेट करो कि मैं सीखता ही नहीं हूं, तो आप निश्त का यूज करोगे. और अगर आपको डॉइच यानी जर्मन को निगेट करना है कि मैं जर्मन नहीं सीखता, हो सकता है कुछ और सीखता हूं, मैं जर्मन नहीं सीखता एटलीस्ट, तो आप काइन का यूज करोगे. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने सेंटेंस में किस चीज को निगेट करना चाह रहे हो. एक सेंटेंस में वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है. ये डिसाइड आपको करना है कि आप किस चीज को निगेट करना चाह रहे हो. सो बाइस्पिल अगर मैं आपसे पूछूं कि उमर spielst du Fußball. उमर क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? फूसबाल. इन diesem Satz इस सेंटेंस में उमर spielst क्या है? spielst ist ein Verb. spiel एक वर्ब है. spielen खेलना एक्शन. und Fußball क्या है? Noun. एक नाउन है. अगर आपको मुझे कहना है कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता, हो सकता है कुछ और खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप कहोगे schreibe ich hier ganz oben, मैं ऊपर लिखता हूँ, आप कहोगे nein ich spiele keinen Fußball. Ich spiele keinen Fußball. मैं कोई फुटबॉल नहीं खेलता. sondern बल्कि ich spiele क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. इस सेंटेंस में आपने किसको निगेट किया? फुटबॉल को. और फुटबॉल क्या था? एक नाउन. इसीलिए आपने निगेशन में क्या यूज किया? काइन का. लेकिन अगर मैं उमर से पूछूं, मैंने फ्रागे कि उमर spielst du Fußball, और उमर को कहना हो कि फुटबॉल तो क्या, मैं तो कुछ भी नहीं खेलता, मैं तो खेलता ही नहीं हूँ, मैं खेलता ही नहीं हूँ, आई डोंट प्ले. तो अब उमर फुटबॉल को निगेट कर रहे हैं या एक्शन को निगेट कर रहे हैं? Action को. एक्शन को, क्योंकि मैं तो खेलता ही नहीं हूँ. आई डोंट प्ले. इश habe keine Zeit. मेरे पास वक्त ही Keine नहीं Zeit. होता खेलने का. मेरे पास वक्त Spielen नहीं nichts होता भी हो खेलने सकता का. है. तो फिर आप क्या यूज करोगे? अब आप यहाँ निश्त का यूज करोगे और आप कहोगे ich spiele nicht. मैं खेलता उसको. नहीं हूँ, मैं खेलता ही नहीं या हूँ. spielen nicht. या spielen nichts भी हो सकता है ना. ich spiele nichts भी हो सकता है. वो निक्स का मतलब अलग होता है. ये जो निक्स आपने कहा, इस निक्स का मतलब होता है नथिंग. Nothing. नथिंग मीन्स कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं. खेलता मैं. ओके सो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट को आगे चलकर देखेंगे. फिलहाल अगर आपको कहना है कि मैं खेलता ही नहीं हूँ, Spielen ich nicht. spiele nicht. सो एक सेंटेंस में एक्शन भी होता है और एक वर्ब भी Verb. हो और नाउन भी होता है. तो इट Okay. टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज को निगेट करना चाहते हो, किस चीज से इनकार करना चाहते हो. Klar? Alles klar. Sehr gut. Danke. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Arbeitest du heute? क्या तुम आज काम कर रहे हो? बिलाल. बिलाल अहमद. बिलाल अहमद ह्यूजुमिश. Arbeitest du heute? Yes. क्या तुम आज काम कर रहे हो? Ja, ich arbeite heute.
Ja, ich arbeite heute. हाँ, arbeite. मैं आज काम कर रहा हूँ. Oder Nein, ich arbeite ich arbeite äh, nicht heute nicht. Ich heute nicht. arbeite heute nicht. मैं आज काम नहीं कर रहा. In diesem Satz, इस सेंटेंस में haben wir kein Nomen. इस सेंटेंस में तो कोई नाउन ही नहीं है. कोई नाउन नहीं है. तो verb negate कर रहे हैं. बिल्कुल. काम करना, arbeitest, arbeiten, काम करना, to work. To work means काम करना. वर्ब है, एक्शन है. Ich arbeite, मैं काम कर रहा हूँ. Ich arbeite nicht, मैं काम नहीं कर रहा. Ich arbeite heute, मैं आज काम कर रहा हूँ. Ich arbeite heute nicht, मैं आज काम नहीं कर रहा. We are negating the action of work. वर्क के एक्शन को, काम करने के अमल को निगेट किया जा रहा है, उससे इनकार किया जा रहा है. Verstehen Sie? Klar? Ja. Sehr gut. Okay, dann Humera. Humera, hast du Zeit? Humera, Ja, hast du Zeit? ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Oder Nein, ich habe nicht Zeit. nicht Eines. Zeit? Oder keine Zeit? Kein Zeit. Kein Zeit. Warum? Kein Zeit क्यों? Zeit. Nomin. The Noun. noun. Site. Capital letter से लिखा हुआ है हुमेरा. Yes. Site. Sir. Die Site. The Zeit. noun. Die Zeit. Site कहा जाता है टाइम को. वक्त. वक्त एक नाउन है, एक नाम है. वक्त. Klar? Ich habe keine Zeit. I don't have time. मेरे पास कोई वक्त नहीं है. मेरे पास वक्त नहीं है. Verstehen Sie? Yes, वक्त sir. का होना. Understood. Sehr gut. Okay, dann Hamza. Mohammed Hamza. Hamza, isst du einen Apfel? क्या तुम एक सेब खा रहे हो? Ja, ich ऐसे esse einen Apfel. einen Apfel. हाँ, मैं एक सेब खा रहा हूँ. या मैं एक सेब नहीं खा रहा हूँ. मैं कोई सेब नहीं खा रहा हूँ. Nein, ich esse nicht Äpfel. Ich esse nicht Äpfel oder keinen Apfel. Nicht Äpfel. Apfel. Apfel ist ein Nomen oder Verb. Ist ये नाउन है या वर्ब है? Noun. नाउन है. तो अगर आपको निगेट करना है कि मैं सेब नहीं खा रहा हूँ, मैं कोई सेब नहीं खा रहा हूँ, तो आप क्या यूज करोगे? काइन का या निश्त का? नॉन के साथ तो काइन ही यूज होगा, बट इधर एक्शन भी तो हो रहा है, एप्पल नहीं खा रहा. अगर आपको कहना है कि मैं कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, तो आप निश्त का यूज करोगे. लेकिन इस सेंटेंस में चूंकि आपसे पूछा गया कि आप सेब खा रहे हो और आपको कहना है कि मैं कोई सेब नहीं खा रहा, ओके, इसका मतलब देन आप काइन. सेब या एप्पल को निगेट कर रहे हो, तो आप काइन का यूज करोगे. ओके. ओके ओके. या आपसे जो पूछा गया वो एप्पल से रिलेटेड है, तो आपका फोकस किस पे होगा? एप्पल पे. नॉन पे. ओके. बिल्कुल. sehr gut. Dann Nihal. Nihal oder Nashid, hast du noch Frage, कोई question? जी सर. सर ये आईने आइनन और आइन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी बिल्कुल. ये कंफ्यूजन कि अभी आप लोगों की थोड़ी रहेगी 2-3 लेक्चर्स तक, बिकॉज ये टॉपिक हमारा थोड़ा आगे का है. ये आर्टिकल्स का टॉपिक है और इंशाल्लाह जब आर्टिकल्स को कवर करेंगे नशिद, तो फिर इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे. ओके. फिलहाल इसको इग्नोर ओके कर दें. ओके ओके. ओके. निहाल. निहाल, trinkst du Wasser? क्या तुम पानी पी रहे हो? Ja, ich trinke, ja, ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Sehr gut. Oder Nein, ich nicht trinke Wasser. Oh, also, ich nein, trinke, ich trinke nicht Wasser. ich trinke nicht Wasser oder kein Wasser. Kein Wasser, kein Wasser. वाहुम खाइन. खाइन का इस्तेमाल क्यों किया निहाल? क्योंकि सर
काइन वो वासर जो है वो हम मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं नाउन शायद या वासर बिल्कुल नाउन है। नाउन नोमिन नोमिन वासा इज नोमिन नाउन है। मैं कोला पी रहा हूँ ich trinke कोला। खोला मैं कोई कोला नहीं पी रहा ich ich trinke trinke kein keine Cola। sehr gut keine Cola। ओके मिस नुसरत hast du noch Frage कोई क्वेश्चन? जी सर। सर देखें, अभी तो हम पानी पीने की भी तो बात कर रहे हैं ना, तो हम निष्ठ लिखेंगे। लेकिन अगर हम पानी के साथ कुछ और बोलेंगे, ये पी रहा हूँ ये नहीं पी रहा, उस वक्त हम काइन यूज करेंगे ना? नहीं नहीं इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब है और उसके साथ नाउन भी है और नाउन को फोकस करके पूछा गया है कि क्या आप पानी पी रहे हो, आप बोलो नहीं मैं पानी नहीं पी रहा, तो आप हमेशा काइन का यूज करोगे क्योंकि आप पानी को निगेट कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी और चीज को भी मेंशन करो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके मतलब इसमें हम निष्ठ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता कि ड्रिंक्स डू क्या आप पी रहे हो और इसमें कोई नाउन नहीं होता सेंटेंस में, जी जी तो फिर आप निस्ट का यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि नाउन आ गया तो हम नाउन को फोकस करेंगे। ठीक। ओके शाहिद शाहिद हाजुन अफागे कोई क्वेश्चन? यस सर। आपने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि क्या आप जर्मनी से आए हो, तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ पे आपको बताया कि काइन विल बी यूज्ड फॉर द नाउन जर्मनी डॉइचलैंड। तो वहाँ पे आपने कहा कि निस्ट यूज होगा, सो उसको थोड़ा क्लियर कर दें। जैसे मैं बर्लिन में रहता हूँ। ओके मैं बर्लिन में रहता हूँ। इस यस सेंटेंस में जो बर्लिन है वो भी एक नाउन है, नाउन है, यस सर। लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं बर्लिन में नहीं रहता हूँ, तो आप निस्ट का यूज करोगे क्योंकि आप यहाँ बर्लिन को निगेट नहीं कर रहे हो, आप अपने रहने को निगेट कर रहे हो। रहने ओके को हो सकता है आप ओके कहीं और रहते हो, तो आप जिस चीज को निगेट ओके कर रहे हो वो रहना है, तो रहना क्या है? एक वर्ब है, तो आप निस्ट का यूज करोगे बिल्कुल ऐसे ही। कॉम्स आउस डॉचलैंड क्या आप जर्मनी से आए हो? अब आप कहोगे मैं जर्मनी से नहीं आया हूँ। आना निस्ट का कॉमन। वर्ड। ओके निस्ट क्ला तो मकाम, उर्दू में अगर हम कहें कि मकाम जो है बिल्कुल उसमें दैट आप इज दैट इज अ निस्ट का यूज नाउन, करोगे उस वहाँ पे निस्ट का यूज करें। बिल्कुल, क्योंकि उसमें आप उस जगह को निगेट नहीं कर सकते, आप अपने अमल को निगेट कर सकते हो। ओके परफेक्ट। sehr थैंक gut sehr gut okay dann gehen wir weiter आगे चलते हैं। हाँ liest du ein Buch? अली फारूक Hüzumisch Ali Ja, ja, ich lese ein Buch. ich lese oder ich lese? Ich lese sehr gut ich lese ein Buch मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ या मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा। Ich Ich lese lese nicht ein Buch. Keine kein Buch, Buch ja. kein Buch मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा। I don't read any book। klar kein Buch noun Buch ist ein Nomen, ये एक नाउन है, सो नाउन को निगेट करने के लिए kein Buch। sehr gut dann जवेरिया जवेरिया spielst du Cricket? क्या आप Ja, क्रिकेट खेलते हो? ich spiele Cricket. Ich No. spiele Cricket, sehr gut. Oder Nein, ich spiele इस keine ich spiele kein, sehr gut, ich spiele kein Cricket, मैं कोई क्रिकेट नहीं खेलता। हो सकता है कुछ और खेलता हूँ लेकिन क्रिकेट तो नहीं खेलता। ओके sehr gut sehr gut dann Faisal Faisal Hizumish oder Faisal Hizumish ओके फैसल kein Problem। दुकान में चैट schreiben ना, आप आंसर चैट में लिख सकते हो, और कोई भी चैट में नहीं लिख रहा है आंसर। आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द चैट, मैं चैट भी देख रहा हूँ। नशीद
Ja, ich kaufe Kaufst du Brot? eine Brot. Ich kaufe ich kaufe Brot. हाँ मैं ब्रेड खरीद रहा हूँ. Oder नशिद Ich kaufe kaufe keine Brot. kein Brot. Sehr gut. Kein Brot. मैं कोई ब्रेड नहीं खरीद रहा. Brot. Nomen. Brot. Nomen. Mhm. Okay. Sehr gut. Okay. I hope सर कि मेरे निश्त में एक और सवाल काइन है। में कोई मुश्किल नहीं होगी. नशिद noch Frage कोई क्वेश्चन? हम्म सर इसके अंदर आईने ब्रॉड नहीं होगा? आइन ब्रॉड हो सकता है. अगर आप कहो कि मैं एक ब्रेड खरीद रहा हूँ तो आप इसमें आइन यूज कर सकते हो. लेकिन वो आर्टिकल है. ओके. आर्टिकल्स को बाद में देखेंगे. आइन का मतलब होता है एक. a bread. Klar? Okay, sehr gut. Dann, I hope कि निश्त में और खाइन में कब मुश्किल नहीं होगी. Das Bauchspiegelübung काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और जी हाँ, auch viele Übungen, बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं इस पीडीएफ में. इन सब एक्सरसाइजेज को लाजमी कीजिएगा घर से. तो ये टॉपिक आपका और क्लियर हो जाएगा. ओके डन. उम्मे हबीबा. उम्मे हबीबा, was machst du? आप क्या कर रहे हो? Benutzen Sie dieses Schlüsselwort, okay? इस कीवर्ड का यूज करो. Und antwortest du और आप जवाब दोगे. Zum Beispiel Brot essen. जैसे यहाँ लिखा हुआ है Brot essen. Antwortest du आप जवाब दोगे कि ich esse Brot. Einfach. Ich esse Brot. मैं ब्रेड खा रहा हूँ या खा रही हूँ. Was machst du? Was का मतलब है what. Machst kommt aus machen. Machst कहाँ से आया? Machen से. Machen means to do something, कुछ करना. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? Was machst du? Ich esse Brot. Einfach. Okay? Habiba. Okay, kein Problem. Dann Ikra. Ikra Sheikh. Was machst du, Ikra? Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Sehr gut. Du trinkst Wasser. Sehr gut. Dann Fatma. Fatma Khan. Was machst du? Hm? Fatma Khan. Was machst du? Oder Mariam. Mariam. Was machst du? Ich lese Buch. Ich lese. Ich lese Buch. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. ओके. फिजा. फिजा. Was machst du? तुम क्या कर रहे हो? Brief. Brief means letter यानी खत. Schreiben. Schreiben means to write यानी लिखना. Ich machen, Ich mache. schreibe. Schreibe. Du hast ein Verb hier. Okay, आपके पास एक verb है. Schreiben. Yes. Okay. Ich schreibe einen Brief. मैं एक खत लिख रही हूँ. Schreibe einen Brief. मैं खत लिख रही हूँ. ओके. इस सेंटेंस में इश क्या है? सब्जेक्ट schreibe, वर्ब और brief एक ऑब्जेक्ट है. einfach, सिंपल. इन तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं है. Was machst du, Matiullah? Matiullah, was machst du? आप क्या कर रहे हो? Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. मैं जर्मन सीख रहा हूँ. Sehr gut. Du lernst Deutsch. Sehr gut. Okay, dann Bilal Akhtar. Bilal Akhtar, was machst du? Hausaufgaben. Hausaufgaben means homework. Ich mache Hausaufgaben. Ich mache Hausaufgaben. Sehr gut. मैं होमवर्क कर रहा हूँ. Kennen Sie? आप लोगों को पता है? Pronounce with me. Aufgabe. Aufgabe. Aufgabe कहा जाता है टास्क को. ओके. और Aufgaben. Aufgaben का मतलब होता है टास्क्स. एक से ज्यादा टास्क. ओके. और घर को क्या कहते हैं? घर को कहते हैं हाउस.
तो वो काम जो आप घर से करते हो उसको क्या कहा हाउस जाता ऑफ है? काम। हाउस ऑफ गार्डन, यानी घर के टास्क, होमवर्क, इसको होमवर्क कहा जाता है। Verstehen Sie? Sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं। कौन रह गया? अगर कोई रह गया है, heben Sie die Hand, ना raise your hand. Okay, Miss Nusrat, was machst du? Ich sehe, Ich sehe ich sehe Film. Film. Sehr gut. Ich sehe einen Film. मैं मूवी देख रहा हूँ। Eine Ich Film. sehe Film oder einen Film. मैं मूवी देख रहा हूँ। Einfach. In diesem Wort, इस word में film क्या है? एक Object. noun है जी जी। और ज़ेहन क्या है? एक verb है। Verb. यानी देखना। Ich sehe, मैं देख रहा हूँ क्या? मूवी यानी फिल्म। Einfach. Sehr gut. Dann Humaira. Humaira oder Hamza. Mohammed Hamza. Hamza, was machst du? Ich höre Ich Music. höre, ich Höre höre Music. Musik. मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। hören, hören means to listen, सुनना, सुनना। Ich höre Musik. मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। Sehr gut. Okay, dann Umar. Umar Shah. Umar Shah. Was Ja, machst du? ich kaufe ein Brot. Sehr gut. Du kaufst oder ich kaufe Ich kaufe ein Brot. Sehr ein gut. Ich Brot. kaufe ein Brot. मैं ब्रेड खरीद रहा हूँ। Ich kaufe ein Brot. मैं कोई ब्रेड नहीं खरीद रहा उमर। मैं कोई ब्रेड नहीं खरीद रहा। Ich keine Brot kaufe. Ich kaufe kein Brot. kein Brot. Einfach. Ja. Ein की जगह kein. Simple. Okay. Sehr gut. Dann Ali Farooq. Ali Farooq, was machst du? Ja, ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Pronounce it me Büro. Büro. Büro means ऑफिस। Büro कहा जाता है ऑफिस को। ओके। और ये im जो है एक्चुअली, ये im itself कुछ die. नहीं होता। ये in और Büro के Ja. साथ लगा हुआ आर्टिकल है them। ओके। in them Büro, तो इसलिए वो im हो गया। Klar? Alles Sehr klar. gut. Sehr gut. Dann Fiza. Fiza, was machst du? Ich spiele Fußball. Ich spiele Fußball. मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। Sehr gut. Okay, dann Faisal. Okay, Faisal, du kannst in den Chat schreiben. Nehal. Nehal, was machst du? Ich, ich mache, Mache oder koche? ich koche Reis. Sehr gut, ich koche Reis. मैं चावल बना रहा हूँ। Sehr gut. Koche means to cook, बनाना। Ich koche. Sehr gut. Dann Shahid. Shahid Bashir. Shahid Bashir, was machst du? Yes, आप क्या sir. कर रहे हो? Ich Ich öffnen, ich öffne die Tür. die Tür, okay? Ich öffne die Tür. I'm opening the door. मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। Öffnen. दरवाजा Öffnen means to open, यानी खोलना। Tür, die Tür. Tür कहा जाता है door को, यानी दरवाजा। Okay? right, sir. Klar? Sehr gut. Okay, dann Bilal. Bilal Akhtar. Okay, Bilal Akhtar, was machst du? Schließen. Schließen means to close, बंद करना. To close. Ich
schließe sehr gut das Fenster. Fenster means window. Fenster means window. खिड़की. Sehr gut. Okay, then Hamza. Muhammad Hamza. Was machst du? Nehmen. Nehmen ist ein Verb und bedeutet to take, लेना. Ich nehme. Ich nehme. Ich nehme den Bus. मैं बस ले रहा हूँ. Ich nehme den Bus. Bus means bus. Klar? I'm taking the bus. Okay, wir haben auch viele Übungen और भी बहुत सारी Exercises है. Aber machen Sie alle Übungen zu Hause, okay? इन सब Exercises को आप घर से कीजिएगा. Und beenden wir heutige Vorlesung, आज के लेसन को यहाँ